So Psalm number 12, the faithful have vanished. To the choir master, according to the Sheminith, a Psalm of David. What is the meaning of Sheminith? कल हमने देखे थे. Sheminith. Shigyon, Sheminith, I think wandering. ये वाला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से गाना करके मैंने कल बोला था. गिटार की सामानी है, फिर भी और कुछ है. हाँ, आई थिंक इसको 8 स्ट्रिंग्स है. 1 2 3 4. तो शेमिनिथ मीन्स 8 स्ट्रिंग वाला एक इंस्ट्रूमेंट. 8 स्ट्रिंग, इसमें 8 स्ट्रिंग्स है. इस तरफ 4, उस तरफ 4. गिटार में कितना है? 6, और 2 जोड़ना पड़ेगा. So Psalm 12 is one of the many psalms attributed to King David, a central figure in the Hebrew Bible and the key contributor of Psalm. The Psalm is a lament expressing deep concern over the moral and social decay of society, particularly prevalence of deceit, flattery and falsehood. So Psalms 12 also has the same context. It also speaks about the decay of society. समाज में कुछ बुरे बातें हो रहा है, वो बातें साम नंबर 12 में भी दर्शाता है. किसी ने पढ़ी है? आवाज उठाकर पढ़ी है. Save, O Lord, for the godly one is a God, for the faithful have vanished from among the children of man. Everyone utters lies to his neighbors with the flattering lips and the doubt heart they speak. So verse 2 में लिखा है everyone utters lies to the neighbor. So Psalm number 12 also has a connection. It speaks about the social crisis, means समाज में faithful और झूठ बोलने वाला लोग बढ़ते जा रहा है. विश्वासी लोग faithful people are very few and they are vanishing. So by looking into this situation, the psalmist is singing. Maybe it also has connection with Psalm number 11, maybe during the time of Saul or Absalom, but it also has the same tuning of Habakkuk. Habakkuk भी कि क्यों परमेश्वर से उतना सवाल पूछा, सेम सिचुएशन था. The faithful people are very few and they are vanishing. The wicked people are ज़्यादा मतलब they are very rich and they are growing. सो साम नंबर 12 का संदर्भ ये भी है, समाज में देखा तो सब बिगड़ते जा रहा है, तब ये प्रार्थना किया. सो साम नंबर 12 का हिस्टोरिकल सेटिंग पक्का ये है करके वचन से निकालने के लिए नहीं होगा, लेकिन इन कनेक्शन विद साम नंबर 11 मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाउल और मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अब्सलोम. और आगे बढ़िए वचन 3 से. Those who say with our tongue we will prevail, our lips are with us, who is the master over us. Because the poor are plundered, because they needy wrong, I will now rise, says the Lord. I will place him in the safety for this. So again, this psalm has one more tuning. You can see here, such as Isaiah, Jeremiah and Micah. Isaiah, Jeremiah, मीका का भविष्यवाणी में बात यह था, समाज में झूठ का ऊपर झूठ और गलती के ऊपर गलती के ऊपर गलती ही बढ़ते जा रहा है. ऐसे एक संदर्भ में ये आइज़ाया, जेरेमिया, मीका ने क्या किया था? प्रोफेसी किया था. सो दे सेम काइंड ऑफ एक संदर्भ है भजन संगीता 12 का भी और 11 का भी, क्योंकि हम 11-12 कनेक्शन में पढ़ रहे हैं. एंड
ये भजन संगीत लिखने का समय दाऊद ने लिखा और 8 स्ट्रिंग वाला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से गाना करके बोला, ही इज वरीड अबाउट द पीपल ऑफ गॉड, और द सामिस्ट इज वरीड अबाउट द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का लोग के ऊपर सताव आते हुए वो लोग कम होते जा रहा है। आज हमारी तरफ जो खड़ा हुआ देश बिगड़ते जाने की वजह से वो लोग भी कल कहां दिखाई देता है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग द फेथफुल आर वैनिशिंग। आज तक विश्वास में था, संदर्भ बिगड़ने की वजह से वो लोग भी कहां चला गया। Those who are in faith, they are also going back to their old life. So, literary context and such structure. So, the psalmist is crying for help, not only for him, but for the nation. इस भजन संगीतकार क्या कर रहे हैं? खुद के लिए नहीं रोते हुए प्रार्थना का नहीं कर रहा है। He is praying for entire nation. Verses 1 and 2. The lament over disappearance of faithful people. विश्वास लोग कम होते जा रहा है इसलिए रो रहा है। 3 and 4 परमेश्वर का न्याय के लिए तड़पते हुए प्रार्थना कर रहा है फॉर डिवाइन जजमेंट। वर्स 5 ही इज आस्किंग गॉड्स रेस्पॉन्ड, परमेश्वर आप इस संदर्भ में कैसा उत्तर देगा, रेस्पॉन्ड करेगा। वर्सेस 6 and 8 yet again it starts with a lament, विलाप के साथ शुरू हुआ, अंत हुआ डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट इन God's power or words. Read last verse, 12 का last verse. On every side the wicked proud us violent. 7 and 8 together. You, O Lord, will keep them. You will guard us from this generation forever. On every side the wicked proud. Okay. So it ends with the confidence. Start with the lamentation. So the tuning is रोते हुए शुरू करते हुए कंफर्ट मतलब भरोसा रखते हुए अंत करता है। एंड इट ऑल्सो यूजेस पैरेललिज्म। वर्सेस 3 and 4 देखो, वर्सेस 3 and 4 नहीं देखने के लिए बोला। 4 का शुरुआत में टी स्मॉल है, देन टी स्मॉल है। क्यों करके पूछा था आपको मैंने, पैरेललिज्म के बारे में 1000 बार लिखने के लिए बोलना पड़ेगा। Theological themes. It starts by saying godly people are very less. So the first thing, the correction of human speech. Why? Because वहां lies करके शब्द को उपयोग किया। What is meant by lie? So the corruption of human speech in a short word that is called as lie. The faithfulness of God, लेकिन परमेश्वर का विश्वासी योग्यता क्या है करके भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। Then ये इस मुसीबत के बीच में how God's protection is there for righteous people. That is point number 3. Point number 4, the preservation of the righteous even in the midst of suffering. How God is going to protect the righteous people. धर्मी लोगों को मुसीबत के बीच में परमेश्वर कैसे बचाएगा, इस भजन संगीत में और एक टाइटल है। How we should resist the evil, मतलब ये लोग कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है? उनको विश्वासियों की बन के जीने का पावर ताकत नहीं है। सो सामिस्ट बताता है हाउ यू शुड रेसिस्ट फॉलिंग टू इविल थिंग, बुरे बातों में गिरने से खुद को कैसे बचाना है करके भी वचन संहिता में बताया। सो लिटरेरी थियोलॉजिकल पैरेलल्स मतलब हम देखा तो इन ए साइड इट स्पीक्स अबाउट क्राइसिस and in the other side it speaks about confidence. In a side it speaks about judgment, it speaks about the faithfulness of God, it speaks about the wicked, it speaks about the righteous. समझ आया? इतनी बातों को इसका अंदर तुलना किया है। कॉन्फिडेंस, क्राई आप लोग खुद बना सकता है। क्राई से शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस में अंत हुआ। वो बोलने के समय याद रखना, इंग्लिश में है तो अक्षर का पैरेललिज्म देखना, ये अक्षर का क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव आइडिया यूज करना। क्राई शुरुआत में रोता है क्राई, अंत में कॉन्फिडेंस। सो सी समझ आया? सो इन द बिगिनिंग रोते हुए शुरू किया, अंत में कॉन्फिडेंट। वो प्रचार करने के समय ऐसा किया तो बहुत अच्छा लगेगा प्रचार।
CC, it should has a connection, और your every point में सेम शब्द से लेके आए तो भी अच्छा लगेगा. In the history, rabbinic commentators और old scholars ये बताता है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का शक्ति कोई भी मुसीबत होगा उनका लोगों को बचाएगा. In the same way we can see, even though God gave the people of Israel to the hand of people of Babylon, कुछ लोगों को परमेश्वर संभाल के भी रखा था. एक्सेल में चले गया करके हम वचन में पढ़ता है पुराने नियम में, लेकिन उसी समय में परमेश्वर कुछ लोगों को तो मदद करते रहे क्योंकि वो लोग धर्मी लोग था. एंड दिस इज नॉट ए न्यू टॉपिक, इट स्टार्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम, नोहा. पूरा लोगों को परमेश्वर ने बिगड़ते हुए देखा, लेकिन उसके बीच में कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या भी किया था. सो दैट रिपीटेडली हैपेंड इवन इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल. उदाहरण प्रोफेट्स लोगों का जिंदगी के देखो, देश में पूरा अकाल आएगा फिर भी इन लोगों का खाना मिल जाएगा. So it also has the ideas of parallelism, metaphor, irony. Irony मतलब ये है, पढ़िए वो वचन, वर्स 3 and 4 पढ़िए. May the Lord cut off all the things which nothing that make those who say with our tongues we will favor our lips are with आयरनी मतलब ये है, वहां का सिचुएशन क्या है बताया. इवन द विकेड पीपल आर आस्किंग गॉड व्हाट इज गोइंग टू हैपन और नथिंग इज गोइंग टू हैपन. एंड इधर परमेश्वर का एक उत्तर के समान भी कुछ बातें लिखा. वचन 3, मे द लॉर्ड कट ऑफ ऑल द फ्लैटरिंग लिप्स. वचन 1 और 2 में उन्होंने सवाल पूछा, झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा बढ़ते जा रहा है. 3 में आते आते उत्तर भी दिया, क्या कौन न्याय करेगा. सो ऐसा वाला वो तरीका का नाम है आयरनी. सिचुएशन को बताया, सिचुएशन को कौन बदलेगा करके भी उत्तर भी दिया, कैसा बदलेगा करके भी उत्तर दिया. आयरनी का मीनिंग समझ आया. हिंदी ढूंढना तो मुश्किल हो गया, इसलिए ऐसे समझ कर रखना. द device that we use, literary device, irony is, it explains about the situation and it gives the answer for that solution also. समझ आया ना irony means. Then repetition, lips, tongues करके शब्दों को repeatedly इस वचन में आप लोग देख सकता है. Then contrast, it speaks about humanity, it speaks about divinity. इंसान का हालत क्या है बताया, परमेश्वर क्या करे भी बताया. दैट इज कॉन्ट्रास्ट. कंटेम्पररी रिलेवेंस, आज का समय में हम कैसे यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक इनटू द वर्ल्ड, एवरीवन इज टर्निंग बैक फ्रॉम फेथ. नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टर्निंग बैक फ्रॉम फेथ. घर वापस ही बहुत लोग वापस उनका पुराना विश्वास में जा रहा है. ऐसा वाला एक संदर्भ में आप लोग इस भजन संगीतों को लेकर प्रचार कर सकता है. सो एग्जाम्पल वर्स 2, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद भी वो बुरा है करके बोलने वाला लोग क्या बता रहे हैं. वचन 2 में लिखा है, उन्होंने उनका पड़ोसी से क्या बोल रहा है, झूठ. सो परमेश्वर उनका जीव को क्या करेगा करके लिखा. अभी समझ आया कॉन्टेक्स्ट क्या है पक्का. सो मे बी even after knowing Shaul or Absalom is the wrong person, many people might have talked against David. और एक संदर्भ बताता हूं, अब्सलोम शाऊल परमेश्वर का विरोध है करके समझते हुए भी लोग क्या किया होगा, दाऊद की विरोध बात किया होगा, तब दाऊद ने इस गीत को गाया होगा. इसलिए उन्होंने बोल रहा है सच को समझने के बाद भी लोग क्या कर रहा है, अपना अपना नेबर से झूठ बोल रहा है. सो एनी डाउट? So who is the master?